रेवंत रेड्डी ने मिस वर्ल्ड मुकाबला में हिस्सा लेने वाली लड़कियों पर लाखों रुपए खर्च करके उनके लिए दावतों का एहतमाम किया, लेकिन हमारे गारुकल तलबा को मियारी खाना खुलाने की उनमें ताकत नहीं। केटीआर ने इल्जाम लगाया कि कर्ज मुआफ़ी की कहानी 50,000 करोड़ से शुरू होकर आखिर में 12,000 करोड़ पर ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा कि बाकी सारा पैसा रेवंत रेड्डी ने दिल्ली के लीडरों को तोहफों के तौर पर भेज दिया। केटीआर ने रेवंत रेड्डी की दिल्ली दरबारी सियासत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम की फलाह और बहबूद पर खर्च होने वाली रकम दिल्ली में सियासी मुफादात के लिए इस्तेमाल हो रही है। केटीआर ने मुतालबा किया कि गारुकल तलबा के लिए फौरी तौर पर मियारी खाने का बंदोबस्त किया जाए। रेवंत रेड्डी के रवैये पर अवाम में नाराजगी बढ़ रही है। केटीआर ने कहा कि बीआरएस हुकूमत में तलबा को आला मेयार का खाना दिया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस हुकूमत में हालात बदतर हो गए हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर अवाम के जज्बात के साथ खलवाड़ करने का इल्जाम लगाया। केटीआर ने अवाम से अपील की कि वो कांग्रेस के धोखाधही पर मबनी वादों को पहचाने। मीटिंग పెట్టిండు బ్యాంకులు 50,000 కోట్లు కావాలి సార్ అని చెప్పారు. చెప్తే గుడ్లు తేలేసిండు. వామ్మో ఇదేదో పెద్ద గుణ కథ అని తెలివగా చెప్పినా ఇరుక్కపోయినా ఏం చేయాలని చెప్పి తెల్లారి ఎక్కడో మీటింగ్ పోయిండు. పోయి ముందు రోజు బ్యాంకులు 50,000 కోట్లు అని చెప్తే ముఖ్యమంత్రి అంటాడు, ఏమున్నదా కడుపు కట్టుకుంటే ఒక్క సంవత్సరం 40,000 కోట్లు కట్టేయచ్చు, కడుపు కట్టుకుంటే ఎడమ చేత్తో ఇచ్చేయచ్చు 40,000 కోట్లు అన్నాడు. 40,000 కోట్లకు ఆయన 10,000 మింగేసిండు తెల్లారి వరకు. మళ్ళా తెల్లారో మర్నాడు కేబినెట్ మీటింగ్ పెట్టిరు, మంత్రులందరూ కూర్చున్నారు. కూర్చొని తెల్లారి కేబినెట్ లా 40,000 కోట్లు కాదు 31,000 కోట్లు అన్నారు. మళ్ళా 9,000 మింగింది, 31,000 కోట్లు అన్నారు. సరే అది కూడా ఏందో చూద్దాం అనుకుంటుంది. మళ్ళా మేమందరం నేను ప్రశాంత్ అన్న అసెంబ్లీకి పోయినాం, సీనన్న కౌన్సిల్కి పోయినాం. పోతే బడ్జెట్ పెట్టిరు. బడ్జెట్ లో చూస్తే 26,000 కోట్లే అన్నారు. మళ్ళా 5,000 కోట్లు మింగింది. ఏడవైనరబై ఇవన్నీ అనుకుంటే మళ్ళా తెల్లారో మర్నాడో ఆయన నెలకో 2 నెలలకో ఆ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తున్నాడు, బ్యాంకులతో మాట్లాడుకుంటే ఇంగ్లీష్ లో చెప్తున్నాడు, మనము పైసలు వేసినాము కానీ మొత్తం అందలేదు అన్నాడు. ఎంత వేసినామని చెప్పిండు ఎరికేనా? 12,000 కోట్లు. కథ మొదలైంది 50,000 కోట్ల కాడ, కథ ముగిసింది 12,000 కోట్ల కాడ. అంటే మరి 38,000 కోట్లు ఏడవైనాయి, ఎక్కడికి పోతున్నాయి? ఎటు? పక్క మాట టకీ టకీ మనం పడుతున్నాయి అన్నాడు. టకీ టకీమని టకీ టకీమని ఒక రాహుల్ గాంధీ ఖాతాలో మాత్రం జోరుదారు పడుతుంది. सोनिया गांधी ने रेवंत रेड्डी को जो खत लिखा इसमें मेरी तारीफ की गई है, कहकर झूठ बोलना शर्मनाक बात है। बीआरएसएमएलए के पी विवेकानंद उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना अवाम के खुद एहतराम को गिरवी रखने वाले अंदाज में बात कर रहा है। विवेकानंद ने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी सोनिया गांधी के घरेलू मुलाजिम की तरह रवैया अपना रहा है। सोनिया गांधी के खत में कहीं भी रेवंत रेड्डी की तारीफ करने की बात नहीं लिखी गई। खत में वाज़े तौर पर लिखा है कि वो ज़ाती वजूहात के सबब इजलास में शरीक नहीं हो सके। रेवंत रेड्डी ने इस खत को गलत अंदाज में पेश करके अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। ये रवैया तेलंगाना के अवाम के साथ एक बड़ा धोखा है। विवेकानंद का इल्जाम। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी अपनी सियासी नाकामियों को छुपाने के लिए झूठे बयानात दे रहा है। विवेकानंद ने कांग्रेस क़यादत से मुतालबा किया कि वो रेवंत रेड्डी की हरकत पर सख्त नोट लें। तेलंगाना के अवाम रेवंत रेड्डी के दोगलेपन को समझ चुके हैं और वक्त आने पर जवाब देंगे। సోనియా గాంధీ గారు రాసిన లెటర్ ఏతున్నదో, సోనియా గాంధీ గారు లెటర్ రాసింది అది చూపెట్టుకుంటూ ఇది నాకు ఆస్కార్ అవార్డు లాంటిది, నాకు ఆస్కార్ అవార్డు ఇచ్చినంత గొప్ప ఈ సోనియా గాంధీ గారి లెటర్ నాకు పంపించడము, నన్ను అప్రిషియేట్ చేసింది అని చెప్పుకోవడం అనేది సిగ్గుచేటు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క ఆత్మ గౌరవాన్ని తాకట్టు పెట్టినట్టు సోనియా గాంధీకి ఊడిగం చేస్తుంటే ఇంట్లో పనిచేసేవారు కూడా మాట్లాడినట్టు. దీంట్లో ఎక్కడ కూడా సోనియా గాంధీ గారు అప్రిషియేట్ చేస్తున్నట్టు కానీ చాలా బాగా మంచి పని చేస్తారు కానీ ఎక్కడ కూడా లేదు. దానికి పోగా నాకు వేరే కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ మీటింగ్కి అటెండ్ కాలేకపోతున్నానని చెప్పడం సిగ్గుచేటు. అది చాలా స్పష్టంగా లాస్ట్ లైన్లో రాసినది, ఐ రిగ్రెట్ దట్ డ్యూ టు ప్రియర్ కమిట్మెంట్స్ ఐ విల్ బి అనేబుల్ టు అటెండ్. అంటే నాకు వేరే కార్యక్రమాలు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను మీటింగ్కి రాలేకపోతానని చెప్తామని ఇంత స్పష్టంగా అవమానకరంగా ఆమె మీటింగ్కి రాకపోగా
ఇదే ఉత్తరాన్ని చూపెట్టి ప్రజల్ని మభ్యపెట్టి ప్రజలు తప్పుదో పట్టించడానికి ఇన్ని రోజులు ఇంకా దొంగ మాటలు. रेवंत रेड्डी, अगर तुम इसी तरह जुबान दराजी करते रहे तो तुम्हारे साथ घूमने वाले उन 16 अफराद के नामे अवाम के सामने ला दूंगा। मुझे मालूम है कि तुम जुबली हिल्स में कहाँ ठहरे, दुबई में कहाँ रहे और दिल्ली में कहाँ कयाम किया, सब सबूत मेरे पास है। रेवंत रेड्डी ने मिस वर्ल्ड मुकाबला में हिस्सा लेने वाली लड़कियों के फोन भी टेप करवाए हैं। वुज़रा का इल्जाम है कि रेवंत रेड्डी फोन टेपिंग करवा रहे हैं, इसीलिए कई वुज़रा काबीना इजलास का बाइकआउट करके दिल्ली में बैठे हैं। रेवंत रेड्डी हुकूमत में शामिल वुज़रा के फोन भी टेप कर रहे हैं, जिस पर दिल्ली में जबरदस्त हंगामा बरपा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जब फोन टेपिंग के मामले का इल्म हुआ तो वो रेवंत रेड्डी पर सख्त नाराज है। ये इल्जामात नहीं बल्कि नाकाबिल तरदीद हकायक हैं। BRSMLA पादी कौशिक रेड्डी का बयान। कौशिक रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी की गैर इखलाकी सरगर्मियों के ठोस सबूत उनके पास मौजूद हैं। फोन टेपिंग मामले पर दिल्ली में कांग्रेस क़यादत की सतह पर संजीदा मुशावरत जारी है। BRS कायदीन ने मुतालबा किया कि रेवंत रेड्डी के खिलाफ फौरी तहकीकात शुरू की जाए। ఖచ్చితంగా నేను చెప్తా ఉన్నాను, నేను ఇది అలిగేషన్ కాదు, ఇది ఏ ఎంక్వైరీ అయినా ఇవ్వండి. ప్రైవేట్ హ్యాకర్లతోని రేవంత్ రెడ్డి గారు హీరోయిన్ల ఫోన్లు ట్యాప్ చేయిస్తా ఉన్నాడు, ఆ హీరోయిన్లని బ్లాక్మెయిల్ చేస్తా ఉన్నారు. ఆఖరికి మొన్న మిస్ వరల్డ్ వచ్చిన వాళ్ళే కూడా ఫోన్లు ప్రైవేట్ హ్యాకర్లతోని దాన్ని ట్యాపింగ్ చేయించిండు. ట్యాపింగ్ చేయించి ఎంత అసభ్యంగా ప్రవర్తించిర్రో, వాళ్ళని బ్లాక్మెయిల్ చేసే ప్రయత్నం చేసిర్రో మీరు అందరు కూడా చూసిర్రు. ఇవన్నీ కూడా వాస్తవాలు, నేను చెప్పేది ఏది కూడా అబద్ధాలు చెప్తారండి. ఇలా మిస్ వరల్డ్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా హ్యాకింగ్ చేసినావు, హీరోయిన్ల ఫోన్లు హ్యాకింగ్ చేస్తున్నావు. ఆఖరికి ఒక హీరోయిన్ ఫోన్ హ్యాకింగ్ చేసి ఆ హీరోయిన్ని ట్రాప్లో పడేసి బ్లాక్మెయిల్ చేసి మై హోమ్ పూజాకి రాత్రి 2 గంటలకి పోయి యా హీరోయిన్తో ఏం చేసినావు నీకే తెలియాలి, ఇక మాకైతే తెలియదు. కానీ మాకు సంస్కారం ఉన్నది కాబట్టి ఆ హీరోయిన్ పేరు బయట పెడతలేం. కానీ మేము బయట పెట్టదలుచుకుంటే నువ్వు తిరిగిన 16 మందితోని నేను బయట పెడతా. ఏదో ఒక రోజు నువ్వు ఇదే విధంగా చేస్తూ ఉంటే నువ్వు తిరిగిన 16 మంది నువ్వు చేసింది ప్రతి నాకు తెలుసు. నేను కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచే వచ్చినా. నువ్వు ఏమేమి చేసినావు, ఎక్కడెక్కడ చేసినావు, జూబ్లీస్ లేడం అనుకున్నావు, దుబాయ్ లేడం అనుకున్నావు, ఢిల్లీ లేడం అనుకున్నావు, అన్నీ తెలుసు మాకు కూడా. నువ్వు చక్కగా రాజకీయం ముఖ్యమంత్రి లెక్క బిహేవ్ చేసి చక్కగా రాజకీయం చేస్తే చక్కగా మేము కూడా చేస్తాం. MLA कौशिक रेड्डी को MLC डॉक्टर बिलमोर वेंकट ने सख्त इंतबा जारी किया। वेंकट ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी पर गैर शाइस्ता तबसरे करने वाले कौशिक रेड्डी को अवामी तौर पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने खबरदार किया कि बसूरत दीगर अवामी गुस्सा ऐसा होगा कि कौशिक रेड्डी की कपड़े उतार कर पिटाई होगी। कौशिक रेड्डी को पागल कुत्ता करार देते हुए वेंकट ने कहा कि अगर वो इसी तरह फजूल बिकते रहेंगे तो अवाम पत्थर मार कर सबक सिखाएंगे। वेंकट ने इल्जाम लगाया कि कौशिक रेड्डी बगैर सबूत के वजीर आला पर फोन टिपिंग और फिल्मी अदाकाराओं की जिंदगियों से खेलने जैसे झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि माजी में ड्रामा राव के ड्रामे देखकर अवाम ने थूका था, अब कौशिक रेड्डी भी वही हरकतें दोहरा रहे हैं। कौशिक रेड्डी सिर्फ कलवाकुंतला खानदान पर मजाक उड़ाने वाले कामों में मसरूफ है, अवामी खिदमत को भूल चुके हैं। वेंकट ने कहा कि कौशिक रेड्डी को खौफ है कि अगर इतला राजेंद्र BRS में शामिल हो गए तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कौशिक रेड्डी जैसे ब्रोकर्स को अवाम सबक सिखाएंगे और उनका अंजाम बुरा होगा। डॉक्टर वेंकट ने कौशिक रेड्डी को मशवरा दिया कि फौरी मुआफ़ी मांगे वरना अवामी गुस्से का सामना करना पड़ेगा। నీకు నిజంగా సిగ్గుశరం ఉంటే నువ్వు మాట్లాడిన మాటలు, నువ్వు గతంలో డ్రైవర్ లెక్క కేటీఆర్ కి డ్రైవర్ లెక్కుండి నువ్వు ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నప్పుడు కేటీఆర్ BRS పార్టీ నాయకులు చేసిన పనులన్నీ కూడా అందరూ కూడా అదే రకంగా పనిచేస్తారనే విధంగా నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు. ఈరోజు నువ్వు మాట్లాడిన ప్రతి మాట మీ లీడర్ ఎవరైతున్నాడో కల్వకుంట తారక రామారావు ఆయన చేసిండు అని స్వయాన నువ్వే సాక్షివి. ఎందుకంటే ఇటువంటి ఒక వ్యవహారాలు ఆయన చేసినప్పుడు, ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసి అనేక మందిని ఇబ్బందులు పెట్టినప్పుడు, అనేక మంది ఇబ్బంది పడ్డప్పుడు బహుశా ఈ వ్యవహారాలన్నిటికీ కూడా ఆ రోజు ఆయనని తీసుకెళ్లిన ఆ డ్రైవర్వి నువ్వే. ఈరోజు ఆయన చేసిన పనులన్నీ కూడా ఇతరులు కూడా చేస్తారు, అందరు కూడా అదే రకమైన ఒక వ్యవహారం ఉంటుంది అన్నట్టు నువ్వు మాట్లాడుతున్నట్టు చాలా స్పష్టంగా కనబడుతుంది. దానితో పాటు ఈరోజు BRS పార్టీలో ఎక్కడ ఈటల రాజేందర్ చేరతాడు, ఈటల రాజేందర్ చేరితే మళ్ళీ హుజరాబాద్ టికెట్ ఎక్కడ అడుగుతాడు, మళ్ళీ ఈటల రాజేందర్ హుజరాబాద్ టికెట్ అడిగితే నీ ఖేల్ ఖతం అవుతుంది, నీ పని ఖతం అవుతుంది అని చెప్పి
ఆ కుటుంబ సభ్యుల దగ్గర పేరు తెచ్చుకోనికి తప్ప तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हल्का जात ने इंतखाब की असर नोहदबंदी की दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। प्रोफेसर पुरुषोत्तम रेड्डी ने 2022 में आंध्र प्रदेश ऑर्गेनाइजेशन एक्ट सेक्शन 26 के तहत हदबंदी कराने के लिए अर्जी दायर की थी। दरख्वास्त में कहा गया कि जम्मू और कश्मीर में हदबंदी के वक्त आंध्र प्रदेश ऑर्गेनाइजेशन एक्ट को नजरअंदाज किया गया है। प्रोफेसर पुरुषोत्तम रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना और एपी में हल्का जात की हदबंदी को नजरअंदाज करना आईनी उसूलों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान कहा कि इस किस्म की दरखास्तों को मंजूर किया जाए तो दीगर रियासतों से भी इस तरह की अर्जियां आने लगेंगी। अदालत ने वाज़ेह किया कि हदबंदी का इख्तियार इंतखाबी कमीशन और पार्लियामेंट के दायरा कार में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर रेड्डी की अर्जी को नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि पॉलिसी मामलात में मुदाखलत करने का इख्तियार अदालत को नहीं है। इस फैसले से तेलंगाना और आंध्रा में हदबंदी का मसला एक बार फिर तात्तुल का शिकार हो गया है। कानूनी माहिरीन ने कहा कि इस मौजू पर अब मरकजी हुकूमत और पार्लियामेंट को ही इक़दाम करना पड़ेगा। मरकजी वजारत इत्तलात व नशरियात ने फुहश मवाद नशर करने वाले 24 OTT प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी आयद कर दी है। हुक्काम के मुताबिक बारहा इंतबाह के बावजूद ये प्लेटफॉर्म्स कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर इखलाकी मवाद नशर कर रहे थे। जिन OTT प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाई गई उनमें ऑल्ट बिग शॉट्स शामिल हैं। इस फहरिस्त में लाइट, गुलाब ऐप, बुल ऐप भी शामिल हैं। वाव एंटरटेनमेंट, लुक एंटरटेनमेंट पर भी कार्रवाई की गई। दीगर ममनुआ प्लेटफॉर्म्स में सोल टकीज, एद TV, VIP ऐप शामिल हैं। VIP जैसे ऐप्स भी गैर इखलाकी मवाद के सबब बंद किए गए। वजारत ने वाज़ेह किया कि फहाशी के खिलाफ कार्रवाई मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी और कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम होगा। खम जिला के तालाला मंडल में किसानों को यूरिया की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। तालाला मंडल की सोसाइटी में यूरिया लारी को रोककर किसानों ने धरना दिया। किसानों ने इल्जाम लगाया कि उनकी सोसाइटी को मुख्तस किया गया यूरिया दूसरी सोसाइटी को मुंतकिल किया जा रहा है। इस गैर मुनसिफाना तकसीम पर किसानों ने शदीद बिरहमी का इजहार करते हुए सड़क पर एहतजाज किया। किसानों ने कहा कि जिला में 3 वज़रा मौजूद हैं मगर कोई भी उनके मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रहा। यूरिया के बगैर फसलों की काश्त मुमकिन नहीं। किसानों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। एहतजाज करने वाले किसानों ने हुक्काम से फौरी तौर पर मुनसिफाना यूरिया सरबराही का मुतालबा किया। किसानों ने कहा कि अगर उनके मसाइल हल न हों तो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। मकामी सोसाइटी के जिम्मेदारान ने हुक्काम की लापरवाही पर अफसोस का इजहार किया। हुक्काम ने किसानों को यकीन दिलाया कि यूरिया की सप्लाई में शफाफियत लाई जाएगी और मसला का फौरी हल निकाला जाएगा। రైతాంగానికి తక్షణమే రైతాంగానికి తక్షణమే రైతాంగానికి वरंगल जिला के रापरती मंडल के मीलरम गांव में एक नौजवान किसान ने बिजली सब स्टेशन के सामने खुदसोजी की कोशिश की। किसान रमेश नाइक का ट्रांसफार्मर जलकर खराब हो चुका था जिसे 1 महीना गुजरने के बावजूद बिजली हुक्काम ने ठीक नहीं किया। रमेश नाइक ने नया ट्रांसफार्मर खरीदने के लिए DD भी निकाला लेकिन हुक्काम ने कोई तवज्जो नहीं दी। खेती का वक्त खत्म हो रहा है, बिजली के बगैर काश्त मुमकिन नहीं, इसलिए किसान बार बार दरखास्तें देकर थक चुका था। हुक्काम की लापरवाही से दिल बर्दाश्ता होकर रमेश नाइक ने सब स्टेशन पर आकर अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया। वो हुक्काम के सामने ही खुद को आग लगाने की कोशिश करने लगा जिससे सनसनी फैल गई। मौके पर मौजूद अफराद ने मुदाखलत करते हुए रमेश नाइक को बचा लिया और हुक्काम को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। किसान ने कहा कि बिजली न होने से इसकी फसलें बर्बाद हो रही हैं और उसका रोजगार खतरे में है। मकामी किसानों ने भी रमेश नाइक के साथ इजहार यकजहती करते हुए हुक्काम के खिलाफ एहतजाज किया। वाकया के बाद बिजली महकमा ने किसान के मसला को फौरी हल करने का वादा किया है। లేకపోతే మాత్రం ఇక్కడైనా తలబెట్ట వీళ్ళు లేకపోతే దీనికైనా తలబెట్టిపోతాయి అన్న ఇంతే. నాకు నేను కడుతున్నా సార్, ఇగో సార్ నేను డీడీ కడుతున్నా, డీడీ కట్టేది బాధ్యత నాదే. కట్టకుంటే చెప్పుతాను లెక్కల తర్వాత చూసుకుంటాం ఇంతే. నాకు ఉన్న
ఉన్నాయి సార్ 30 గుంటలే సార్ ఒకసారి చెప్పండి సార్ ఈయన చెప్పండి. రవి సార్ ఈయన పేరు రమేష్ రవి గారు సార్ ఇచ్చిన సార్ మాట్లాడండి సార్. సార్ సార్ రమేష్ సార్ బిల్లా వీడియో కాదు నేను చెప్తాను సార్ ఇప్పుడు రెడీ ఉన్నాయి డీటెయిల్ అక్కడ రెడీ ఉన్నది పట్టుకోపోదు ఇస్తారా కొత్తది ఇస్తారా అక్కడ కొత్తది కాదు నేను చచ్చిపోతా ఇప్పుడు. करीमनगर जिला के हुजूराबाद में वाक़ महात्मा ज्योतिबा फूले तेलंगाना बैकवर्ड बॉयज रिहायशी स्कूल में चूहों के काटने का वाकया पेश आया। स्कूल के हॉस्टल में चूहे घुसकर तलबा को काट लिए, जिससे 10 तलबा जख्मी हो गए। जख्मी तलबा को फौरी तौर पर हुजूराबाद एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल के अमला ने तलबा को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ शदीद नाराजगी देखी जा रही है। तलबा ने शिकायत की कि हॉस्टल में सफाई सुथराई की हालत निहायत ख़राब है। मकामी अवाम ने स्कूल में चूहों की भरमार पर इंतजामिया की लापरवाही पर बिरहमी जाहिर की। हुक्काम ने इस वाक़या की तहक़ीक़ात का हुक्म देते हुए सफाई के फौरी इक़दामात करने की हिदायत दी है। तालीमी इदारों में बुनियादी सहूलियात की कमी पर अवामी हलकों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। स्कूल इंतजामिया ने यकीन दहानी कराई है कि आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात किए जाएंगे। जगतियाल जिला के वीलगटूवर मंडल के वेंकटापुर गांव में बारिश के बाद कीचड़ से भरे सड़कों पर देहातियों ने अनोखा एहतजाज किया। बारिश के वक्त सड़कें कीचड़ में तब्दील होकर आमद और रफ्त में रुकावट बन रही हैं, लेकिन हुक्काम की जानिब से कोई इक़दाम नहीं लिया जा रहा। देहातियों ने बारहा शिकायत करने के बावजूद मसला को नज़रअंदाज करने पर बिरहमी जाहिर की। हुक्काम की लापरवाही के खिलाफ बतौर एहतजाज देहातियों ने सड़क पर ही धान की रुपाई वरी नाटलो शुरू कर दी। एहतजाज के दौरान उन्होंने कहा कि अगर सड़कें इस हाल में रहें तो हम यहाँ खेती बाड़ी कर लेंगे। देहातियों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सड़कों की मुरम्मत की जाए और निकासी आब का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। एहतजाजी मुजाहरा देखकर मकामी अवाम भी उनके साथ यकजहती का इजहार करते हुए शामिल हो गए। ये अनोखा एहतजाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और अवामी तवज्जो हासिल कर रहा है। देहातियों ने कहा कि अगर उनके मुतालिबात पर कार्रवाई न की गई तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। हुक्काम ने देहातियों को यकीन दहानी कराई कि सड़कों की मुरम्मत के लिए जल्द ही इक़दामात किए जाएंगे। हैदराबाद के बंजारा हिल्स MLA कॉलोनी रोड नंबर 12 में सड़क पर गैर कानूनी कब्जा करके दीवार तामीर करने वाले शख्स का वाकया पेश आया। टाउन प्लानिंग के हुक्काम जब सड़क कब्जे को रोकने के लिए मौके पर पहुंचे तो मज़कूरा शख्स ने उनका रास्ता रोका। इस शख्स ने अपनी कार से तलवार निकालकर अफसरान को धमकाया कि मेरे मामले में दखल दिया तो काट कर रख दूंगा। अफसरान ने सूरत-ए-हाल को देखते हुए फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर हमलावर शख्स को काबू में लिया और तलवार जब्त कर ली। इस वाकया के बाद सरकारी अमले में खौफ और हरास की फिजा देखी गई। मज़कूरा शख्स के खिलाफ सरकारी ड्यूटी में रुकावट डालने और धमकियां देने के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मकामी अफराद ने गैर कानूनी तमीरात पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। टाउन प्लानिंग हुक्काम ने वाज़ेह किया कि सड़कों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। पुलिस वाकया की मुकम्मल तहकीकात करके मजीद कानूनी कार्रवाई करने में मसरूफ है। म्यूचल की स्पेशल ऑपरेशन टीम 60 और साइबराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 अफराद को साइबर फराड के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमीन एक मुनज़्ज़म गिरोह का हिस्सा थे जो साइबर मुजरिमों को गैर कानूनी रकम की मुंतकली के लिए फर्जी बैंक खाते फराहम करते थे। ये अफराद गैर मजाज मोबाइल एप्लीकेशंस और सिम स्वैप के जरिए खातों तक रसाई हासिल करते थे। फराड की सरगर्मियां DLF गुची बावली के करीब होटलों से चलाई जा रही थीं, जहां खातादारों के दस्तावेजात हासिल करके उनके मोबाइल में खतरनाक APK फाइल इंस्टॉल की जाती थी। ये नेटवर्क मुबैना तौर पर एक बैन अल-अक़वामी हैंडलर जिसे अजय कहा जाता है कि निगरानी में काम कर रहा था। छापों के दौरान 16 मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप, 2 कारें और 82,500 रुपये नकद बरामद किए गए। हुक्काम मजीद मुलजिमीन और उनके डिजिटल शवाहिद का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम को बैंक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की मशकूक कॉल्स और मैसेजेस से होशियार रहने की हिदायत दी गई है। हैदराबाद में गांजा स्मगलिंग के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदगान में शेख महबूब आलम और नौबू खान शामिल हैं, जो जेल में दोस्ती के बाद मुनशियात के कारोबार में मुलव्वस हो गए। शेख महबूब आलम ने जेल में कंपली तिरुपति नामी शख्स से ताल्लुकात कायम करके रिहाई के बाद गांजा सप्लाई का काम शुरू किया।
खुफिया इत्तला पर घाटकेसर एक्साइज पुलिस ने नौअबू खान को 230 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया। इसके बाद शेख महबूब आलम के मकान पर छापा मारकर 6.42 किलो गांजा जब्त किया गया। तहकीकात के दौरान शेख महबूब आलम ने तिरुपति को गांजा सप्लायर के तौर पर बेनकाब किया। दूसरी कार्रवाई में एसटीएफ ने हदगडा में विशाल सिंह को 1.161 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि ये मुनशियात का नेटवर्क जेल में बनने वाले ताल्लुकात की वजह से परवान चढ़ा। तहकीकात जारी है और पुलिस को मजीद गिरफ्तारियों की तवक्को है। अवाम से अपील की गई कि वो मुनशियात स्मगलिंग की सरगर्मियों की इत्तला पुलिस को दे। हालिया बारिशों के सबब तकरामगेट गुडा में एक पुराना मकान मुनहदिम हो गया। ये मकान तकरीबन 50 साल कबल तामीर किया गया था और खस्ता हाली का शिकार था। हादसा के वक्त मकान में कोई मुकीम नहीं था, जिसके बाइस जानी नुकसान नहीं हुआ। मकान के गिरने से करीबी इलाके में खौफ व हरास फैल गया। मकामी अफराद ने मलबे को हटाने के लिए हुक्काम को इत्तला दी। बल्दिया के अमले ने मौके पर पहुंचकर मलबा साफ किया। हुक्काम ने दीगर बोसीदा मकानात की निशानदेही और एहतियाती तदाबीर का जायजा लेना शुरू कर दिया है। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से खस्ता हाल इमारतों के फौरी मुआयना का मुतालबा किया है। मदविश हालत में कार चला रहे एक शख्स ने अपनी गाड़ी मकान की दीवार पर चढ़ा दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। यह वाकया मीरचल जिला के डंडीगल पुलिस स्टेशन हुदूद के शेम्बीपुर में पेश आया। ड्राइवर नशे में धत था और गाड़ी पर काबू खो बैठा। तेज रफ्तारी के सबब का सीधे मकान की दीवार से जा टकराई। हादसा में खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची। गाड़ी को दीवार से हटाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। राजस्थान में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां स्कूल की इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। इस हादसे में 7 तलबा जाँ बहक हो गए, जिससे इलाके में कोहराम मच गया। वाकया स्कूल के औकात के दौरान पेश आया, जब बच्चे क्लास में मौजूद थे। हादसा के बाद मकामी अफराद और रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। मलबे में फंसे दीगर तलबा को निकालने के लिए बचाव कार्रवाइयां की गईं। जख्मी तलबा को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां बाज की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हुक्काम ने वाकया की तहकीकात का हुक्म दे दिया है ताकि इमारत गिरने की वजह मालूम की जा सके। वजीर आला ने वाकया पर गहरे रंज और गम का इजहार करते हुए जाँ बहक तलबा के लवाहिकीन से तज़ियत की। बिल्डिंग में सुबह हादसा हुआ और हमारे बच्चे जो स्कूल पढ़ने वाले थे वो इसका शिकार हुए। इस तरह के हादसे को रोकने के लिए हम संकल्प हैं। भविष्य में ऐसा कोई हादसा नहीं हो, इसके लिए कोशिश करेंगे। शिक्षा विभाग को हमारे निर्देश थे कि कोई भी ऐसा विद्यालय हो जहाँ ऐसा कुछ होने की संभावना हो, उसमें वो छुट्टी करते हैं। और जो जर्जर भवन थे उनकी भी हमने सूचना दी, उसमें भी कोई स्कूल का नाम नहीं था। अब इसकी जाँच करवाएंगे कि हादसे के क्या कारण है। जो भी दोषी हुए उनकी गिरफ्तारी, जो भी बच्चे दबे हुए थे सब निकाल दिए गए, या तो हॉस्पिटल में या उनको घर पहुंचा दिया। आरसीबी के बॉलर यश दयाल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। राजस्थान की एक नौजवान लड़की ने इल्जाम लगाया कि क्रिकेट करियर में रहनुमाई के बहाने इसे सीतापुर के एक होटल में बिलाकर यश दयाल ने जिनसी ज्यादती की। मुतासिरा लड़की ने पुलिस को शिकायत दी कि यश दयाल ने बाद में इसे ब्लैकमेल करते हुए 2 साल तक मुतअद्दिद बार ज्यादती का निशाना बनाया। वारदात के वक्त मुतासिरा लड़की की उम्र 17 साल होने की वजह से यश दयाल पर पॉक्सो केस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली एक और लड़की ने भी यश दयाल पर धोखाधड़ी का इल्जाम आयद किया। इस लड़की ने शिकायत में कहा कि यश दयाल ने शादी का झूठा वादा कर के 5 साल तक जिस्मानी और ज़हनी अजियत दी। बाद में यश दयाल ने इसे छोड़कर दीगर लड़कियों के साथ ताल्लुकात कायम किए। यश दयाल ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात में गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया है। ये इल्जामात मंजर आम पर आने के बाद क्रिकेट हलकों में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने कहा कि वो मामले की मुकम्मल तहकीकात करके कानूनी कार्रवाई करेगी। मशहूर फिल्म अदाकार और मुकुल निधि मायम (MNM)
पार्टी के सदर कमल हासन ने राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट के तौर पर हल्फ लिया। कमल हासन ने राज्यसभा में तुमुल जुबान में हल्फ बर्दारी की। वो डीएमके पार्टी की हिमायत से राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए हैं। हल्फ बर्दारी के दौरान ऐवान में डीएमके अरकान ने तालियों से खैर मकदम किया। कमल हासन ने कहा कि वो अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए राज्यसभा का मुअस्सिर इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने तुमुल सकाफत और जुनूबी हिंद के हुकूक के लिए आवाज़ उठाने का अज़्म ज़ाहिर किया। कमल हासन की राज्यसभा में एंट्री को तुमुल नाडो में एक बड़ी सियासी पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। डीएमके कायदीन ने कमल हासन की राज्यसभा में मौजूदगी से पार्टी मजबूत होगी कहा। कमल हासन ने कहा कि वो फिल्मी दुनिया से सियासत तक का सफ़र अवाम की खिदमत के लिए ही तय किया है। राज्यसभा में उनका पहला खिताब तुमुल नौजवानों और सकाफती वर्से के मसाइल पर मरकूज होने का इम्कान है। மாநிலங்கள் அவையின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் கமல் ஹாசன் எனும் நான் சட்டத்தினால் நிறுவப்பெற்றதான இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் மீது உண்மையான பற்றார்வமும் பற்றுறுதியும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்தியாவின் இறையாண்மையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் உறுதியாக பற்றி நிற்பேன் என்றும் நான் இப்போது ஏற்கவிருக்கும் கடமையினை நேர்மையாக நிறைவேற்றுவேன் என்றும் விழுமிய முறைமையுடன் உறுதி கூறுகிறேன்। வணக்கம்। अब बीजेपी हुकूमत दिल्ली के मजीद 2 इलाकों की झुग्गियों पर बलडोजर चलाने जा रही है। चुनाव के दौरान वजीर आजम मोदी और बीजेपी ने जहां झुग्गी वहां मकान का वादा किया था, लेकिन इख्तिदार में आते ही गरीबों के घरों को मुनहदिम करने की मुहिम तेज कर दी गई है। अब वजीर आला रेखा गुप्ता की असेंबली हल्का में इंदिरा कैंप की झुग्गियों पर 15 दिन में बलडोजर चलाने का नोटिस चस्पा किया गया है। इसी तरह शाहदरा के लाल बाग इलाके की झुग्गियों को 29 जुलाई को मुनहदिम करने का नोटिस जारी किया गया है। यहाँ के मकीन 1990 से मुकीम है, लेकिन हुकूमत उन्हें बेघर करने पर तली हुई है। मुतासिरा अवाम ने हुकूमत पर झूठे वादों का इल्जाम लगाते हुए एहतजाज करने का ऐलान किया है। बीजेपी हुकूमत का यह इक़दाम अवामी नाराजगी का सबब बन रहा है। झुग्गी वालों ने मुतालबा किया है कि उन्हें मुतबादिल रहाइश दिए बगैर उनके मकानात गिराए न जाएं। दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी वालों के हक में सियासी जमातें और समाजी तंजीमें मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रचार में कहा कि दिल्ली में रहने वाले हर झुग्गी वाले को मकान मिलेगा। पूरी दिल्ली में गरीबों को कार्ड दिए गए जिस पे लिखा था जहां झुग्गी वहीं मकान। मोदी जी ने दिल्ली चुनाव से पहले खुद वादा किया कि जब तक मकान नहीं मिलेगा एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन पिछले 6 महीने से जब से भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार बनी है, एक के बाद एक दिल्ली के गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई सामने आ गई कि वो ये नहीं कह रहे थे कि जहां झुग्गी है वहां मकान देंगे। वो तो वास्तव में कह रहे थे कि जहां झुग्गी है उसको मैदान बना देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई सामने आई है पिछले 6 महीने में। ओबीसी जात पर मबनी मर्दमशुमारी की बात कहने की हिम्मत सिर्फ राहुल गांधी जी ने दिखाई है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम सबको राहुल गांधी का साथ देना चाहिए क्योंकि वो पसमानदा और महरूम तबकात की आवाज़ बने हैं। राहुल गांधी हमेशा पछड़े दलित, आदिवासी और महरूम तबकात के हुकूक के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जात पर मबनी मर्दमशुमारी के बगैर समाजी इंसाफ अधूरा है। मुल्क में वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए हकीकी डेटा आना जरूरी है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ओबीसी मर्दमशुमारी से खौफजदा है, इसीलिए इसे टाल रही है। राहुल गांधी ने जो हौसला दिखाया है वो सिर्फ अवाम के हक में है। उन्होंने कहा कि तमाम पसमानदा तबकात को राहुल गांधी के इस मिशन में शामिल होकर उनका साथ देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेअज़दार नाई कॉन्फ्रेंस
में दिल्ली से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आकर जात पर मबनी मर्दमशुमारी को यकीनी बनाएगी। खास करके राहुल गांधी जी सबसे पहला ये बीड़ा उठाया था। क्या है? उन्होंने ये कहा कि ओबीसी की जातीय जनगणना होनी चाहिए। ये दूसरा कोई नहीं बोला, किसी के पास हिम्मत नहीं थी। सिर्फ एक ही आदमी घोषणा पत्र में भी कहा और खुले आम सबको उन्होंने कह रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ जाना चाहिए। किनका साथ जाना? अरे तुम्हारे पास टिफिन गिफिन करके नहीं आए क्या? अरे राहुल गांधी का साथ दो, देंगे ना? जो देने वाले हाथ उठाओ। देखो, दो आदमी, जो आदमी अपर कास्ट का होके अगर बैकवर्ड्स को साथ देता है, उनके वजह